Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn prose number 4 Vigyapan Ki Kala from grade 11 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So the name of this particular prose is विज्ञापन की कला और उसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय. विज्ञापन की कला. विज्ञापन, what is the meaning of विज्ञापन? विज्ञापन means advertisement and kala, the art of giving the advertisement. So everybody can't give the advertisement properly, so there should be some technique, there should be one art to give the advertisement. How you should give the advertisement on paper, TV or everywhere, so that it should be attract the audience. सो विज्ञापन की कला के लेखक हैं बाबू गुलाब राय. सो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोज के अंदर जाने से पहले, गद्य के अंदर जाने से पहले हमें लेखक के बारे में जानना होता है. सो वी शुड नो अबाउट द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोज. जीवन परिचय में बाबू गुलाब राय हिंदी के प्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वान, लेखक और आलोचक हैं. अपने दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए किया है और एलएलबी भी पास किए हैं. सो बाबू गुलाब राय was a very good writer. So he had also done LLB. 28 वर्ष तक छतरपुर राज्य के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं. संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला पर भी अधिकार रखते हैं. पूर्व और पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है. 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत होने वाले दर्शन परिषद के सभापति भी रह चुके हैं. इनकी रचनाएं, so whatever the important books this great writer had written during his lifetime. Navras is the one of the important book which was written by Babu Gulab Rai. Apart from that, he had written तर्क शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र आदि ग्रंथ लिखकर अपने बड़े अभाव की पूर्ति की है और ये हिंदी के निबंधकारों में से सम्मानित है. आपके निबंध फिर निराशा क्यों में संकलित है. ये भावात्मक और विचारात्मक दोनों कोटि के हैं. ठलुआ कलब और मेरी असफलताएं आपकी हास्य रस की कृतियां हैं, जिसमें मेरी असफलताएं उनके निजी जीवन से संबंध रखती है. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर मेरी असफलताएं, दिस बुक actually he has written this book has written based on the experience or life of his own. यह पुस्तक बड़ी लोकप्रिय हुई है. आप हिंदी में के आलोचना प्रधान मासिक पत्र साहित्य संदेश के संपादक भी रह चुके हैं. तो ये बाबू गुलाब राय, he was the editor of this particular monthly magazine साहित्य संदेश. So यहाँ पर before we will go inside this particular topic, let's see what in this topic what this particular writer want to tell. So before we enter to this prose, we should know that whatever written by Babu Gulab Rai, it was very easy and he had written everything in a simplified format. उनकी भाषा बहुत सरल होता था और सुबोध होता था. सुबोध होता था मीन्स जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, which you can understand very easily. कठिन से कठिन बातों को वो सरल से सरल बनाकर कहने में माहिर थे. He was very expert in simplifying the great words or whatever they narrate inside the book. They narrate it in a very simple words so that normal reader can understand each and every part, each and every line of that particular book, whatever written inside that. गुलाब राय यहाँ पे कहते हैं कि आजकल विज्ञापन का युग है. Yes, this era is nothing but the era of advertisements. Everywhere we see the ads.
विज्ञापन का कौशलपूर्ण आयोजन और संयोजन कुशल व्यापारों का प्रथम कर्तव्य है. That means here inside this particular prose, he has going to narrate what is how you should establish your business. To establish your business or to get the success in that particular business, you should know how to give the advertisement, how to advertise your business properly. If audience, normal people will know or they will come across your ads, they should appreciate your ads, and your advertisement will be designed or will be given in such a manner it will attract the persons. पाठ का सार कुछ इस प्रकार है. वर्तमान समय को विज्ञापन का युग कहा जाता है. अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का कौशलपूर्ण आयोजन और संयोजन व्यापारियों का कर्तव्य बनता जा रहा है. That means who are the businessmen? If also nowadays this is the era of advertisement. Why? Because if you are normally going to sell particular pen also, for that to sell, to grow the sales amount, you should know how to give the advertisement for your pen. So ये पूरा businessman should know how to give the proper ad, whether on paper, on TV or any सोशल नेटवर्क साइट. सो ये एक तरह का टेक्निक होता है और एक तरह का आर्ट होता है जो हर किसी पे नहीं होता है. और सारे बिजनेसमैन को ये सब पता होना चाहिए. They should know how to give the ads. If they know how to give the ads, because ad will attract the buyers. If the buyers will be attracted, then the businessmen they will sell more products. If they will sell more products, they will get the profit. So this is the gist of this particular prose. विज्ञापनबाजी को भले ही प्रगतिशील युग की देन कहा जाता है, पर इसका आरंभ चिरकाल में ही शुरू हो गया था. आदिम युग में स्त्री पुरुष के शरीर पर रंग बिरंगे गोदने और अलंकार विज्ञापन नहीं तो क्या थे. So though we are telling that this era is the era of the advertisement, but अभी ये विज्ञापन दिया गया है या फिर ये सारे युग जो अभी के युग है इसी में ये प्रगतिशील युग में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण चीज है और ये अभी आया है ऐसा नहीं है, ये पहले से भी था. During our ancestors time also, before some 100 years back, 1000 years back, इस तरह के राजा महाराजाओं के टाइम पे भी था. कैसे? बहुत पुराने टाइम पे क्या होता था, all the whether they are man or woman, they used to do some tattoo on their body. So that tattoo also one type of ad, yes or no? और कुछ those tattoo maybe it is a tattoo of some ornament or some any flower or something. So those tattoos also one type of this advertisement. इसी प्रकार पर्दे और किले में रहने वाली रमणियों अपने पायल की झनकार द्वारा अपने अस्तित्व का परिचय देती थी. सो पहले क्या होता था कि राजा महाराजाओं के टाइम पे जो लोग फोर्ट में रहते थे, बड़े बड़े दुर्ग के अंदर जो महलें होती थी उसके अंदर बहुत सारे स्त्री लोग रहते थे, स्त्रियां रहती थी. तो and no one is allowed, no outside is allowed to go inside that palaces or inside that fort. वो सारे स्त्रियां पर्दे के पीछे रहती थी, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे रहने के बावजूद they used to wear anklets. So whenever they walk, their anklets make some sound. So from the sound of their anklets, everybody know that okay, some women are there behind this curtain or behind this fort. पुरुष भी अपने शौर्य, सौंदर्य
के आत्मविज्ञापन के लिए तरह तरह के साधन अपनाते थे। गलियों में घूम फिर कर अपना सामान बेचने के लिए आवाजें लगाते आए हैं, पर ये आवाजें उनके जाने के साथ अनंत महासागर में समा जाती थी। आज समाचार पत्र लगभग हर वस्तु के विज्ञापन के साधन बनकर सूर्य की पहली किरण के साथ घर में आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले भी जब व्यापारी यहाँ आते थे, व्यापारियों भी अपने अपने सामान के विज्ञापन देते थे। कैसे देते थे? जब गली मोहल्लों में, सपोज इन योर स्ट्रीट someone is coming to sell their products like some vegetables or some types of masala, turmeric, or some bangles or something they are coming to sell. So how they are previously what they have to do, they will call like चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ और सब्जियाँ ले लो सब्जियाँ, like this they will call. So what happened, it is also one type of advertisement. But the thing is that whenever they will cross that street, their voice also go with them. So till they will be there inside the street, everyone is aware of that. Okay, someone has came to sell something. But whenever they left that street, nobody should aware of that whether they came or they want to sell something, because उनके साथ उनकी आवाज वहां से चली जाती थी. But nowadays what happened? The morning time, अर्ली मॉर्निंग, पहली किरण के साथ, सूर्य की पहली किरण, that means when sun rises, at that time every house newspaper is available, and in that newspaper, whenever we are opening that newspaper, some colorful ads are there. Some ads would be come in the front page, some will be inside the paper newspaper, some will be back side of that particular, and some special columns will be allotted for this ads. So they are such those arts are very colorful, so unknowingly all the readers will be attracted to that. So if something will be come in front of your eye with a colorful pictures and some text or some slogans, then definitely reader will read that. So सूर्य की पहली किरण के साथ आजकल हर घर घर पर अखबार पहुंच जाता है, और ये अखबार विज्ञापन का एक माध्यम देने का एक साधन बन जाता है. साधन मतलब through which you are going to do that work. So what work you are going to do here? You are going to give the advertisement. The businessman is going to promote his business through the ads, and the ads will be given through this newspaper. So this newspaper is the medium through which the ads should come. अखबार और प्रेस के साधन सुलभ होने से विज्ञापन देना भी एक कला बन गया. इस कला के सहारे गैर जरूरी सामान को भी जरूरी बनाकर खरीदने के लिए लोगों को विवश कर दिया जाता है. इन्हीं विज्ञापन द्वारा जनता की मनोवृत्ति बनाई जाती है. इसके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया जाता है. तो इसमें क्या होता है, पहले अभी nowadays this newspapers sprays are they are very familiar, they're plenty available, technology also developed. So होता क्या है कि अभी जो आर्ट्स एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है उन न्यूज़पेपर्स पर, भले ही वो इतना इम्पोर्टेंट सामान ना हो, मे बी दैट थिंग इज नॉट नेसेसरी इन आवर लाइफ, दैट मीन्स अगर ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा अपना लाइफ, ऐसा नहीं है. लेकिन ये इस तरह से आर्ट्स दिया जाता है जो कि इतना important नहीं है. Those things are not that much important that everyone should buy, but it will attract the readers. Through this advertisement, the readers should be attracted to that, and which is not so important also, persons are going to buy those things after following that advertisement in the newspaper. And whenever this type of things are gradually increasing, तभी ये ऐड देना एक टैलेंट हो गया, एक कला हो गया, एक तरह के ऐड हुआ. इट इज द ऐड to give an advertisement. So whenever any advertisement is coming, that doesn't mean that immediately the result will come. All the readers will come to buy that product, or
do the need things, but इसके लिए आपको होना क्या है कि आपको धैर्यपूर्वक with a patience you have to wait how your ad is giving impact on this particular readers on the society. सो विज्ञापन का धीरे धीरे लोगों पर असर पड़ता है. सो इट इज स्लोली इट इम्पैक्ट्स द रीडर्स द पीपल ऑफ द सोसाइटी. यहाँ लोहार की एक कस्तूरी बेचने के लिए भी विज्ञापन आवश्यक हो गया है. यहाँ लोहार की एक चोट नहीं बल्कि सुनार की 100 चोट की कहावत लागू होती है. सो ये जो रहा लाइन, यहाँ लोहार की एक चोट नहीं बल्कि सुनार की 100 चोट की कहावत लागू होती है. ये एक प्रोवर्ब है, मतलब लोहार की एक चोट से आपका सामान बन जाता है, लेकिन सुनार मतलब गोल्ड स्मिथ, वो क्या करता है, जब ऑर्नामेंट बनाता है तो उसे बहुत धैर्यपूर्वक बहुत पेशेंस के साथ सोने के तार बनाने पड़ते हैं, उससे फिर मोड़ना पड़ता है, उसके डिजाइन बनाना पड़ता है, फिर जाकर उसका कहीं ना कहीं ऑर्नामेंट्स, चाहे वो इयरिंग हो नेकलेस हो जो भी हो वो आते हैं. उसी तरह से विज्ञापन देने के फौरन बाद आपको बिजनेस में व्यापार में लाभ होगा ये आप नहीं कह सकते हो. आप विज्ञापन देने के बाद आपको कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विज्ञापन होता है ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर असर छोड़ता है. झूठे विज्ञापन दाताओं को अधिक कार्य करना पड़ता है. झूठे विज्ञापन दाता है मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ सामान मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती. सम थिंग्स विल बी देयर, some businessmen also there. क्या होता है कि उनकी विज्ञापन देने की कला थोड़ी, विज्ञापन देने के लिए उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी चीजें बेचनी होती है. कभी कभार कई चीजें इतनी पूरा 100% अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक सही होते हैं. तो उन सामानों को बेचने के लिए क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन देना पड़ता है. आज कस्तूरी बेचने के लिए भी विज्ञापन आवश्यक हो गया है. विज्ञापन भी उचित अखबारों में देना चाहिए, अन्यथा लाभ होने की संभावना कम हो जाती है. जैसे खालसा अखबार में रेजर ब्लेड्स और सिगरेट का विज्ञापन देने का कोई लाभ नहीं होगा. So whenever you are doing any business or you are going to promote something, you should know on which newspaper you are going to give the advertisement, because you should select the paper which is very familiar, which is very popular, mostly it is available in each and every house. जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि खालसा अखबार में अगर आप रेजर प्लेट्स का या फिर कोई अलग सामान सिगरेट वगैरह का विज्ञापन देते हो तो कोई लाभ नहीं होगा. विज्ञापन कला का एक प्रमुख अंग है. सो एडवर्टाइजमेंट इज द पार्ट ऑफ द आर्ट्स. इट इज नथिंग, इट इज सिंपली वन आर्ट्स. सो आर्ट हर किसी के पास नहीं होता है, सबके पास थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि वही आर्ट को सेम सिंपल चीजें को तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ये पाठकों का ध्यान आकर्षण करता है. विज्ञापन देने वालों में से कुछ सीधा मार्ग पसंद करते हैं तो कुछ पेचीदा. So some of them will follow the direct, whatever the rules are there, some will follow that. Some will be there, they will go for some deviations also. पर दोनों के लिए उसकी कला का ज्ञान होना आवश्यक है. So whether you will go straight or according to the rule, or you are going doing some deviations, but both the way you are going to give that. So whenever anyone is going to promote through his business through this ad, so she or he should know that particular art. She should be that much of talented how to give this advertisement.
विज्ञापन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पूरा पेज मैटर से भर दिया जाए। विज्ञापन दाता पाठकों की निगाह अपनी ओर खींचने के लिए चिंतित रहता है। सो विज्ञापन जब एडवर्टाइजमेंट आप लोग देते हो, ये नहीं कि पूरा पेज आप मैटर से भरते हो। मैटर मतलब यू हैव टू राइट अबाउट योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉन्फ़िगरेशन और सम कंपोनेंट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट की जानकारी है, वट एवर द थिंग्स regarding your product, you should not cover up all the matter with this writing things. You have to be concentrated, and you have to be think according to the mind of readers, how their eye should come to your art. सो आप विज्ञापन दाता हमेशा पाठकों की निगाहों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रयास करता रहता है। पाठकों को समयाभाव को ध्यान में रखते हुए आजकल पहले पृष्ठ पर विज्ञापन जाने लगा है, ताकि वे अवश्य ही पढ़ जाएं। यद्यपि जरूरत वाले सामानों के विज्ञापन कहीं भी हो, पाठक उन्हें ढूंढ ही लेता है। तो ये अभी क्या है कि nowadays all are very busy, all are going for job, doing some works, so all are busy in their life. No one is now having that much of time to uh, read the whole newspaper. So they will just read the headlines, and they will fold the paper and keep it like that. So for that, nowadays all the ads are coming in the front page of any newspaper. But some things, some matters, some important things are there. So about that, wherever you are going to give the ad, reader will find it out because they need of that. विज्ञापन की सफलता के लिए उचित स्थानों के साथ ही आकर्षक सामग्री का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा विज्ञापन की बात घुमा फिरा कर कहने से सौंदर्य बढ़ जाता है। आज अखबार ही विज्ञापन का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि डायरी, कैलेंडर, पेपरवेट, तस्तरियां भेंट करके अपनी अपनी वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है। So the success of your advertisement, how you will define that? It should be depend on the proper place where you are going to give that ad, and you should also take it in mind that your product should be very attractive. Apart from that, whenever any in your business you are going to go give any advertisement, simple slogans, simple matter can be, instead of telling in a straightforward manner, you have to represent it in a different form. उसे घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर, in a poetic format, in a शायरी format, in a whatever it may be. So it is a one on art. So you should know how to represent your matter on this particular page. And nowadays only this newspaper is not the only medium where the businessman will promote their product, or they are giving advertisements. Apart from that, diary, calendar, paperweight, so some important gifts, some leaflets, social networking site. So many things are developed now. So it is very easy, quite to before 500 years back, whatever the situation may be, same advertisement matter is there, but it is technically it become very advanced. आजकल शहरों की दीवारों पर विज्ञापन की भरमार होती है, पर इसके लिए किराए की दीवार लेकर विज्ञापन दिया जाता है।
जाना चाहिए। ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन आदि की दीवारों पर विज्ञापन देने के अलावा स्लाइडों की भी प्रयोग किया जाने लगा है। विज्ञापन के इस युग में विदेशी कंपनियां भी 3/4 रुपया विज्ञापन में खर्च करती हैं। आज की व्यापारिक सफलता में विज्ञापन का विशेष योगदान है। तो क्या हुआ कि आज का in our city site, so many walls are there. Usually also like Sarva Shiksha Abhiyan. Government also providing some matter on the wall, some pictures, decorative pictures, apart from some slogans, some cartoons. It is also painted on wall. But the thing is that whenever you are going to give this for your business, you have to uh, take that wall on rent. And apart from that, railway station, bus, bus stand, bus depot, everywhere. In fact, of the bus back or any vehicle backside also, some banners, some type of hoarding boards also are there to flash your advertisement, and some slides also move in our big towns where all the ads, around 40-50 slides at a time, they will move one by one, and it will decorated in such a manner that it will attract everyone's eye. Nowadays also, this business also, whether it is small, medium, or grand business, it is also depend on the success of your promoting, how you are going to promote your business through advertisement. So this advertisement is the important thing nowadays. uh, and the foreign companies also, they are spending 3/4 of their money in this advertisement. So this era, actually अगर हम सही में देखने जाएंगे तो यह युग एक विज्ञापन का युग है। पहले भी विज्ञापन देते थे आदिम काल में, जब किले दुर्ग के अंदर महिलाएं रहती थी तो वो अपने पायल के जरिए बता देती थी। पायल की आवाज से उन्हें पता चलता था कि हाँ, इसके अंदर महिलाएं रहती हैं। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपना सामान बेचने आता था, अपने सर पे बोझ की तरह या फिर ट्रॉली में आता था, तो वो आवाज लगाता था, चूड़ियां ले लो, सब्जियां ले लो। ये एक तरह के एडवर्टाइजमेंट है, एक तरह का विज्ञापन है, जो कि आदिम काल से रहता चला आ रहा है। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि वो अगर वो उस गली से निकल जाता था तो उसकी आवाज कहीं खो जाती थी। लेकिन अब इस युग में होता क्या है कि आपके घर घर पे अखबार भी है। अखबारों में पहले पन्ने पे या फिर दूसरे पन्ने पे या फिर अंतिम पन्ने पे आ जाता है, सब्जेक्ट मैटर के साथ कलरफुल पिक्चर्स आते हैं, बहुत सारे आर्ट्स आते हैं। आजकल सबके पास समय का अभाव है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने व्यापार के बारे में जो विज्ञापन देते हैं वो पहले पन्ने पे ही दे देते हैं, और वो हमेशा कोशिश में रहते हैं कि ये इतना अच्छी तरह से दिया जाए, विज्ञापन इतनी अच्छी तरह से दिया जाए ताकि पाठकों की उस पाठकों को उसकी ओर आकर्षित करे। और उसके अलावा भी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं कहीं जानों के बसों के पीछे या फिर कहीं कहीं सारे यानों के पीछे भी ये बड़े बड़े तरह के बैनर्स हुए, या फिर दीवारों में कहीं कुछ चित्रकारिता के सहित कुछ लिखित रूप में, और कहीं कहीं पर स्लाइड्स के जरिए आपके विज्ञापन देना अभी बहुत आसान हो गया है। और अभी तो और भी बहुत इजी हो गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट आता है, बहुत सारे साइट्स आते हैं जहाँ पे आप अपने विज्ञापन दे देते हैं। और ये विज्ञापन भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आपके व्यापार को सही ढंग से चलाना है, आपके
जितने सामान है आपको अगर बेचना है और ये अच्छे से बेचते हैं तो आपको लाभ भी होता है। तो विज्ञापन एक व्यापार का एक अभिन्न अंग हो गया है। उसे हर किसी को अपने व्यापार के लिए विज्ञापन देना चाहिए और विदेश कंपनियां भी इस विज्ञापन के लिए अपने 3/4 हिस्सा कमाई का खर्च भी करते हैं। जहाँ पे छोटे से मैच भी होता है, क्रिकेट मैच हुआ या फुटबॉल मैच हुआ, उसमें भी विज्ञापन लगता है। तो विज्ञापन हर जगह पर, चाहे आपके कपड़े बेचना हो, आपका सब्जी बेचना हो, आपका कोई बर्तन बेचना हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, आप कोई भी व्यापार आप करते हो, सिंपल फूड आइटम ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू सेल, यू नीड ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स। इसके लिए डायरी है, कैलेंडर है, पेपर वेट है, दस्तरिया, भेंट, लिफलेट्स, जो भी आपको साधन है उसे आप बनाकर अपने विज्ञापन के सारे स्लोगानों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करें कि ये आपकी विज्ञापन का सौंदर्य भी बढ़ाए और पाठकों की दृष्टि भी आकर्षण करे। I hope children you understood the summary of this lesson, विज्ञापन की कला। Then come to some question answers। यहाँ पे रोमन लेटर 3 पे है, मुहावरों का प्रयोग का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सो मुहावरे होते क्या है? मुहावरे का मतलब है प्रोवर्ब्स, जैसे इंग्लिश में होते हैं उसी तरह हिंदी में भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला है घर घर में गूंजना। घर घर में गूंजना मतलब कोई अगर आवाज देता है वो हर घर में गूंजता रहता है। लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आवाज घर घर में गूंजने लगी है। ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये एक स्लोगन है। सो ये स्लोगन आजकल सबको ही समझने लगा है और ये पूरा घर घर में गूंजने लगा है। मतलब ये नहीं कि इसका शोर आता है, लेकिन सभी को ये समझ में आ गया है कि बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अधिकार जमाना। अब तो अखबारों के पहले पेज पर भी विज्ञापनों ने अधिकार जमा लिया है। That means all the ads are coming in front of on the front page of the newspaper, and that is particularly intentionally the first page of this newspaper is provided for this advertisement. पैर जमाना, that means you will be establish yourself। नौकरी छूटते ही अपने व्यवसाय में पैर जमा लिया। ये नौकरी छूटते ही उसने व्यवसाय में पैर जमा लिया मतलब वो पहले नौकरी करता था। Whenever he left that job, he established him in his business। चट मंगनी पट ब्याहा मतलब हर काम तुरंत हो जाना। All the work should done very fastly। सुमन को यह जगह इतनी पसंद आई कि उसने फ्लैट खरीदा और मकान बनाकर तुरंत रहना शुरू कर दिया। उसने चट मंगनी पट ब्याह की कहावत सही कर दिखाया। मतलब वो जगह इतना अच्छा था कि उन्होंने प्लॉट भी खरीद लिए, उसमें मकान बना भी लिया। They construct their own house and started to live there। कलाई खुल जाना, व्यापार में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, एक ना एक दिन कलाई खुल ही जाती है। आपकी पोल खुलना, रिवील योर सीक्रेट्स। कसम खाना, अपराधी ने बहुत कसम खाई कि उसने हत्या नहीं की, पर जज ने उसकी बात नहीं मानी। कसम खाना मीन्स taking the oath that no, I didn't do this। So this person taking the oath that I didn't do this crime, but Jaws did not listen to him। घुमाओ फिराओ ढंग से कहना, उसने इतने घुमाओ फिराओ ढंग से अपनी बात कही कि जांच अधिकारी को गुस्सा आ गया। गहरे पानी पैठ बिना सागर से मोती नहीं निकला जा सकता। सनी की शी क्रूर दृष्टि से देखना, कसाई को देखकर बैल अंदर तक कांप उठा क्योंकि कसाई उसे शनि की सी
क्रूर दृष्टि से देख रहा था। मतलब कसाई उसे मारने वाला था, उसे पता था, इसलिए उससे डर जाता था। पृथक हो जाना, सेपरेट, दही को देर तक मथने पर मक्खन पृथक हो जाता है। So whenever you want to separate the makhan from the curd, then you have to roll on stick inside. So you have to separate. पृथक हो जाना मतलब separate होना। निस्दिन पुण्य ही रहे, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लग जाने के बाद अब तो यहाँ निस्दिन पुण्य ही रहने लगा है। पुण्य ही मतलब पूर्णवास, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात क्या होती है? फुल मून डे। फुल मून डे the moon will come big in size and it is full round and it is very brighter. Similarly, whenever in this sentence what is written, इतनी बड़ी बड़ी लाइट लग जाने के बाद यहाँ पर पूर्णिमा जैसी लग रही है। मतलब उन लाइट्स की इतनी पावर है कि हर जगह पर उजाला ही उजाला है। कदर होना, इफ यू आर कैरिंग समवन, सरकारी समथिंग, सरकारी नौकरी मिलते ही घर में उसकी कदर होने लगी है। सो व्हेनेवर ही गॉट द गवर्नमेंट जॉब, एवरीवन केयर फॉर हिम, एवरीवन रेस्पेक्ट हिम। विलीन हो जाना, विलीन हो जाना मतलब किसी के अंदर घुल जाना, किसी के अंदर मिल जाना। देखते ही देखते सारा नमक पानी में विलीन हो गया, तो सारा नमक पानी में मिल गया। चंगुल में फंसना, कुछ गांव वाले बैंक न जाकर आज भी साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। They are trapped. घोषणा करना, नोटबंदी की घोषणा करके सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगी। If you are announcing something, घोषणा मतलब announce। तो एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। विज्ञापन की कला का लेखक, कला लेख के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बाबू गुलाब राय। गुलाब राय के अनुसार आजकल कौन सा युग है? विज्ञापन का युग है। विज्ञापनबाजी किन साधनों के प्रगतिशील युग की देन है? अखबार और छापखाना, ये दोनों ही साधन है। सफल व्यापारी को अपनी वस्तुओं के प्रचार के लिए कौन सा चक्रव्यूह रचना पड़ता है? विज्ञापन का चक्रव्यूह रचना पड़ता है। चाय के प्रचार में कौन सी युक्ति अपनाई जाती है? चाय के प्रचार में गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है तथा रोज चाय पियो, बहुत दिन जियो की निस्वार्थ सलाह देने की नीति अपनाई जाती है। So here they are asking if you are going to sell or you are going to promote any tea, so how you are going to promote? So, गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है, रोज चाय पियो, बहुत दिन जियो। So like this some slogan you have to give. झूठे विज्ञापन वाले क्या करते हैं? झूठे विज्ञापन देने वालों को विज्ञापन की कला से कुछ ज्यादा काम लेना पड़ता है। विज्ञापन कला का प्रधान अंग क्या है? विज्ञापन का ढंग ही उसका प्रधान अंग है। You should know how to give the advertisement. विज्ञापन दाता की सबसे पहली चिंता किस बात को लेकर होती है? विज्ञापन दाता की चिंता इस प्रकार की होती है, वो उस प्रकार का विज्ञापन दे जिस तरह से पाठकों की निगाह उसके विज्ञापन को और आकर्षित होए। विज्ञापन को आकर्षण बनाने के लिए पहली आवश्यकता क्या होती है? विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए पहली आवश्यकता होती है कि उसमें नए और आकर्षक चीजों का प्रयोग करना होता है। डायरी और सूची पत्रों के ग्राहक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? डायरी और सूची पत्रों का सुरक्षित रखने के लिए ग्राहक उसमें ध्यान देने योग्य बातें लिखते हैं। तो ये है विज्ञापन देना एक कला है, ये आपको उदाहरण के सहित समझाना है। सचमुच विज्ञापन देना एक कला ही होती है। एक सफल व्यापारी को अपनी वस्तुओं का प्रचार के लिए विज्ञापन देना पड़ता है और उसे
इस बात की पता होना चाहिए किस तरह से वो दे विज्ञापन और कहाँ पे दे। एक बार ऐसी भरोसे की वस्तु तैयार कर लेने पर जो कि बाजार में कंपटीशन के होते हुए भी वो अपना सामान आसानी से बेच सकता है और अपना सामान को वो अच्छी तरह से प्रमोट कर सकता है, आप इसे बोल सकते हो। तो विज्ञापन देना ही एक कला है। उसका हवाई हमला शुरू हो जाता है कि वो ऐसी चीज तैयार करता है जो समाज की किसी बड़ी जरूरत को पूरा करे। यदि उसकी जरूरत ना भी हो तो वो अपने प्रोपेगेंडा जो होता है उसके बल पर जरूरत पैदा कर लेता है। So suppose something you are having which is not that much of important for any one, but still if you are preparing that type of product, your advertisement will be should be like that. If there is no necessity also, you have to produce your propaganda should be like that. You can produce the necessity in that particular product. The people will feel that okay, it is a necessary product, you should buy it, like that. और चाय के प्रचार के लिए जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाता है, किस तरह से स्लोगन लिखना होता है उसको आप इस ऐसी ही निस्वार्थ वाली सलाह अथवा उसके प्रचार के रंग बिरंगे पोस्टर भी लगा सकते हैं। विज्ञापन का आवश्यकता पर एक लेख लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा सारांश में विज्ञापन कैसे होना चाहिए, क्यों चाहिए विज्ञापन देना, विज्ञापन देने की आवश्यकता क्या है। अगर विज्ञापन नहीं देते हैं तो क्या होता है, हमारे जो व्यापारी लोग होते हैं अगर वो अपने विज्ञापन नहीं देते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, दूरदर्शन हो, जहां भी हो, वो विज्ञापन नहीं देते हैं तो क्या होता है कि सामान वो लोग सामान बेचते हैं, बिकता है सामान, लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं बेच सकते हैं। अगर ये विज्ञापन दे देते हैं तो उन्हें आसानी भी हो जाती है और घर घर में उनकी बातें भी पहुंच जाती है, उनके सामान, उनके व्यापार, उनके कंपनी, उनके दुकान के नाम भी पहुंच जाते हैं। झूठे विज्ञापन वाले किस सिद्धांत पर चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झूठे विज्ञापन वाले ठगी के ठग जैसे लोग होते हैं, मतलब उनकी विज्ञापन में इतनी सच्चाई नहीं होती है, वो लोगों को चीट करना चाहते हैं। उन्हें विज्ञापन की कला से कुछ अधिक काम लेना पड़ता है, उसके लिए तो उतनी भी चतुराई आवश्यक होती है जितनी की ठगी में। किंतु अच्छे और उपयोगी माल बनाने वाले जो होते हैं वो इस कला का सहारा लेते हैं, लेकिन वो अपनी सही दिशा में जाते हैं। मुस्क आनस्त की खुद भिगोयत न की अत्तर भिगोयत। इसका अर्थ कुछ इस तरह से है, कस्तूरी वही है जिसकी खुशबू खुद आए, न कि अत्तर कह के यह कस्तूरी है। संस्कृत में भी ये कहा गया है कि कस्तूरी की सुगंध बताने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही कस्तूरी कामुक शपथ में की विभाव्य दे। यह सब ठीक है, किंतु कस्तूरी की खुशबू अभी उत्तर की दुकान तक ही सीमित रहती है, उसके लिए विज्ञापन आवश्यक हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कस्तूरी जैसी जो कि उसकी अलग सी सुगंध है, उसकी अलग से स्मेल है, जो कि बहुत अच्छी स्मेल है, अगर आप उसे बेचने भी चाहते हो ना तो उसे सेल करके मत बेचो। अगर बेचते हो भी उसकी कला आपको आनी चाहिए। और अगर भी ये कस्तूरी बेचने के लिए अगर हम लोग विज्ञापन की ओर नहीं भी जाते हैं तो होता क्या है, वहीं पर दुकान से कुछ ही देर तक उसे ही बेचने के लिए सीमित रह जाता है। अगर आप विज्ञापन देते हो तो हर जगह पर बेचने के लिए आसानी हो जाती है। So this is all about your prose number 4.
विज्ञापन की कला. I hope children you understood the summary and question answers. So 1 mark and 5 mark question answers are important. Apart from that, Roman letter 3 also जो सारे proverbs है उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना होता है. ये कभी कभी क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं एग्जाम में, एक या दो. सो उसे अच्छी तरह से आपको अभ्यास करना चाहिए. Thank you students. Thanks for watching my videos. Please subscribe my channel and like so that you can get the notification and you can get the more videos on your topic. Thank you.